Hi everybody, welcome back to my channel Swami Vijay, and this is Swami Vijay speaking to all. Topic for this video is who is responsible for our failures? हमारा जिंदगी में जब हम फेल होते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? अगर आपको जानना चाहते हैं सच, आप ये वीडियो को अंत तक देखिए बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू थिंग्स विच नोबडी लाइक्स टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ कैमरा. सब लोग यही बोलते हैं ना, जब हम फेल होते हैं हम ही रेस्पॉन्सिबल करके बोलते हैं. व्हेन वी फेल इन आवर लाइफ एवरीबडी सेज दैट इट इज बिकॉज ऑफ अस और इट इज बिकॉज ऑफ वी आर आवर लैक ऑफ capabilities or lack of capacity. We failed in our life, so everybody says that we are responsible for our failures. लोग तो यही बोलते हैं ना, जब हम फेल हो जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं तुम ही रेस्पॉन्सिबल हो. जब आप एग्जाम्स में फेल होते हैं तो टीचर्स बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं क्योंकि आप ही रेस्पॉन्सिबल है. जब आप जिंदगी में फेल हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं क्योंकि आप ही रेस्पॉन्सिबल है. व्हेन यू फेल इन एग्जाम्स everybody says that you are responsible for the failure in the exams. If you fail in your life everybody says that you are responsible for the failure in your life. Are we really responsible for our failures? क्या कोई दूसरा आदमी, कोई नई जिंदगी में कोशिश करता है कि हमको फेल करने के लिए? Whether nobody in this world tries to fail us to become successful in their life. If you don't understand this analogy, let me give an example. Cricket match. जब बैट्समैन पिच में जाते हैं ना बैटिंग करने के लिए, तो 11 लोग रेडी होते हैं ना उसको आउट करने के लिए. सो 11 people are there and these 11 people are applying their brain and their skills to make this batsman to score none and to get out from the match. So in real life also there may be few people who want to defeat you to win in their life. ऐसा नहीं होता है क्या जिंदगी में? सब लोग ये सोचते हैं ना सारा गलती हमारा ही है और because of our lack of capacity or capabilities we failed in our life. Is it like that? If you think this is just a game, life is also a big game. Even in our life also there may be some people or there may be some agencies who are trying desperately to make us फेल्यूर. वो लोग ये चाहते हैं हम फेल होना है. अगर हम फेल नहीं होंगे तो वो लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे. आपको ये बात सुनने के लिए अच्छा नहीं लग रहा होगा. यू मे नॉट फील हैप्पी टू लिसन टू दीज वर्ड्स. यू मे फील दैट और यू मे थिंक दैट और यू मे हैव बीन programmed to believe that you are the only one responsible for your failures. आपको जिंदगी में बचपन से यही बताया होगा ना, अगर आप फेल हो जाएंगे, अगर आप फेल हो गया मतलब आप कमजोर है, अगर आप फेल हो गया मतलब आपको ताकत नहीं है, अगर आप फेल हो गया मतलब you don't have the ability and capacity and skills to succeed in our life. यही लोग बोलते रहते हैं ना, माँ बाप यही बोलते हैं, टीचर्स यही बोलते हैं, सोसाइटी यही बोलते हैं, सब लोग यही बोल के आपको आपका ब्रेन को स्पॉइल किया है ना. यू हैव बीन प्रोग्राम टू बिलीव दैट you are responsible for your failures. But understand, a game, football or cricket or any other game, if one person wants to succeed, there will be so many players in opposite team, they want him to fail in the game so that they can succeed in the game. जिंदगी भी एक खेल है ना, जिंदगी में भी ऐसा ही लोग होता है, जिंदगी में भी ऐसा ही खेल सकता है. There may be some people whom you don't know who are trying to defeat you or who are trying to fail you or you trying to make you fail. तो ये वीडियो थोड़ा अलग सा वीडियो है. It is not a motivational video. Generally what you observe in motivational video, the speaker comes, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, motivational speaker ये बोलते हैं ना आप ही responsible है, आप ही कमजोर है, आप उठ जाइए, wake up, arise, आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में, कुछ भी मुश्किल नहीं है, nothing is impossible in this life. All those things they used to preach and they used to teach because they want to sell their motivational videos. लेकिन सच तो अलग होता है ना. सो सच क्या होता है जिंदगी में? अगर हम फेल हो गया तो क्या हम ही रेस्पॉन्सिबल है? कोई दूसरा आदमी नहीं रेस्पॉन्सिबल है, कोई दूसरा एजेंसी नहीं है विच मेड अस टू फेल इन लाइफ. मैं आपको ये सारे राज खुल के बताना चाहता हूं. आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक frankly. Let me talk step by step and let me take one by one point which are very crucial in life. With an example, I'll explain each and everything. I'm going to give you one situation. You have to tell me who is responsible for the failure or the misery of that particular person. The situation is like this. When a doctor is delivering a baby from the mother's womb, the doctor has committed some error and due to that the baby has developed
some serious problem or illness like handicap, and throughout the life that baby has to suffer. तो क्या एक वो जो बेबी का गलती है क्या? क्या गलती किया है उस लड़की ने या लड़का ने when he was taking birth in this world? वो तो कुछ गलती नहीं किया है, तो पूरा जिंदगी उसको तो ये भुगतना पड़ रहा है. He has to or she has to suffer throughout his life. Then it is whose mistake or whose failure? अगर कोई फिजिकली हैंडिकैप्ड बॉर्न हो गया, बर्थ ले लिया इस दुनिया में ड्यू टू द कोई डॉक्टर का वजह से, अगर पूरा जिंदगी उसका प्रॉब्लम में चल रहा है, इफ ही इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इज हिज लाइफ इज ए फेलियर? नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है. उसका जिंदगी बर्बाद होने के लिए एक आदमी रेस्पॉन्सिबल है, वो खुद का रेस्पॉन्सिबल नहीं है. अगर आप ये बोलेंगे इट इज बिकॉज ऑफ हिज फेट, वो कर्म बोलते हैं ना, तो इट इज ऑल्सो सेम थिंग what I explained already. Your brain has been programmed by these kind of things. अगर आप ये बोलेंगे उसका जिंदगी ऐसे लिख के भेजा है कोई आदमी, तो इसलिए उसका जिंदगी में ऐसा हो गया, so that is the reason why he has to spend his life throughout his life. वो सच नहीं है ना, उसका कुछ गलती नहीं था, लेकिन he is considered as a failure in life. He is not a abled person like you and me. तो एक किसका गलती है? Who is responsible for that? The doctor is responsible. तो आप समझने के लिए कोशिश कीजिए, अगर हमारे जिंदगी में हम फेल हो गया, हम ही सिर्फ एक नहीं होते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल. देर आर सो मेनी पीपुल, देर आर सो मेनी एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल. अगर आप समझ में आ गए इसको, देन आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट. एजुकेशन. सब लोग यही चाहते हैं ना, अच्छा पढ़ाई करना है, वी शुड गेट गुड एजुकेशन सो दैट विल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ. लेकिन क्या गारंटी है, अगर आप ठीक से पढ़ाई करने से, मेहनत करके पढ़ाई करने के बाद भी आपको जो एजुकेशन दिया गया है, आप वट एवर यू हैव स्टडीड इन योर लाइफ, इज इट रियली यूजफुल टू यू? नो गारंटी. There are so many people who are called or so called educates in this world, but they are just literates. They are having only literacy. They don't have any kind of education in their life. वो लोग क्या बन सकते हैं? क्रिमिनल्स बन सकते हैं या सैडिस्ट बन सकते हैं. Then who is responsible for such kind of people? Is the entire education system is responsible or a single student is responsible? It is the entire education system is responsible. Students या बच्चे होते हैं ना, वो क्या होते हैं उसमें? They are just programmed and they are just told to follow the education system. तो अगर एजुकेशन सिस्टम में गलती है, अगर कोई स्टूडेंट थ्रू दैट एजुकेशन सिस्टम इफ ही लर्न मेनी थिंग्स एंड इन लाइफ इफ ही फेल्स, अगर जब वो प्रैक्टिकल दुनिया में आ जाता है, तब वो जिंदगी में जब फेल हो जाता है, तो एजुकेशन फेल हो गया या जो बच्चा फेल हो गया. इट इज नॉट द इंडिविजुअल हु फेल्ड, इट इज द सिस्टम और द एजुकेशन सिस्टम फेल्ड इन द वर्ल्ड. तो आप खुद को क्यों दोषी दे रहा है? वाई यू आर ब्लेमिंग योर चिल्ड्रन, वाई यू आर ब्लेमिंग दैट यू हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ एजुकेशन? इट इज नॉट यू, इट इज द एंटायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन फेल्ड. तो आप समझिए, कोई अगर अच्छा से पढ़ाई करने के बाद भी अगर जिंदगी में कैसे जीना उसको पता नहीं चला, इवन आफ्टर स्कोरिंग 100% मार्क्स इन एग्जाम्स, इफ दैट चाइल्ड और इफ दैट स्टूडेंट डजंट नो हाउ टू लिव इन हिज लाइफ हैप्पीली और इन हर लाइफ प्रॉपरली, देन the entire system failed. How can you blame a single individual is responsible for the failure? How can you say that that particular child is responsible for failure in his life? He has not been told how to live properly because those things are not taught in the education. So try to understand, if you failed to receive proper education, it is not your fault, it is a fault of the system. आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ? अभी तक तो आपको समझ में आ गया. ये वीडियो तो पूरा डिफरेंट वीडियो है. इट इज़ नॉट लाइक ए मोटिवेशनल स्पीकर. चिल्ला चिल्ला के मैं यही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल है, आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा. आई एम नॉट स्पीकिंग इन दैट वे. द रीजन इज I know that or I believe that everything is possible in this world but not to everybody. अगर सब कुछ सबके लिए पॉसिबल है तो दुनिया में कोई गरीब आदमी नहीं रहेगा, कोई फेल्यूर नहीं रहेगा. दिस वर्ल्ड हैज सो मेनी कॉन्स्पिरेसीज, दिस पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव सो मेनी कॉन्स्पिरेसीज टू मेक यू इंडिविजुअल फेल इन दिस सोसाइटी. आपको तो बर्थ में फेल्यूर हो गया, अब एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया. लेट अस गो टू एम्प्लॉयमेंट. Not only in India, unemployment rate is very high in all over world.
क्यों ऐसा होता है? जब आपसे इतना मेहनत करके पढ़ाई किया है, यू हैव स्पेंट एटलीस्ट 16 to 17 years to complete your education, and once you enter into the job market, you become nothing in the job market. आप जो पढ़ाई करके आए हैं ना, वो तो जॉब मार्केट के लिए या कंपनी के लिए कुछ भी यूजफुल नहीं है. यू आर कंसिडर्ड एज अ फेल्यूर इन दैट जॉब मार्केट. आपको तो बेरोजगारी है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप इतना मेहनत करके आया है, अगर जॉब से मिल रहा है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आपसे काम 100 रुपीज का ले रहा है, लेकिन वो आपको 1 रुपी पे. दे आर एक्सप्लॉइटिंग यू. तो कौन रेस्पॉन्सिबल है? आप रेस्पॉन्सिबल है क्या? आप फेल्यूर है क्या? व्हेन देर आर नो जॉब्स in this world, or when there are no jobs in this country, how can you feel responsible for your failure? I'm not talking about government jobs, I'm talking about jobs in particular, whether it is a private job or a government job. आपको अभी तक पता नहीं चला होगा, अगर आपको जॉब लेना है, if you want to get a job in competition, you have to defeat so many people in the competition who also wanted to get the job. It is like a war. आपको कोई ऐसा नहीं बताया होगा ना, इसलिए आप नहीं सोच रहे होंगे ऐसा, लेकिन मेरे बात ध्यान से सुनिए. इफ देर आर 100 पीपल आर कंपीटिंग फॉर वन सिंगल जॉब, अगर आपको उस जॉब में एक ही पोस्ट है, अगर आपको वो जॉब चाहिए, देन यू हैव टू कॉम्पीट विद द 99 पीपल इन द ग्रुप. तो अगर आप 99 पीपल को डिफीट नहीं कर सकते हैं विथ योर एबिलिटी, एबिलिटी कुछ भी हो सकता है, वो आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो सकता है या फिजिकल एबिलिटी हो सकता है. अगर आर्मी या पुलिस में रिक्रूटमेंट अगर हम सोचेंगे, अगर आपका फिजिकल और मेंटल एबिलिटी नहीं होंगे उन सब को हरा के आपको आगे जाने के लिए, तो आपको तो जॉब नहीं मिलेगा. सो इन अदर वे व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग 99 पीपल फेल इन देयर लाइफ टू गेट जॉब. मतलब आप अगर एक सक्सेसफुल होना है तो 99 पीपल फेल होना है. अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि ये सच है, अगर कोई जिंदगी में सक्सेस हो गया, मतलब वो आदमी मैक्सिमम लोगों को हरा के उधर आ गया. सो दिस इज द फैक्ट. सो दैट इज द रीजन व्हाई मेनी फिलोसोफर्स दे कॉल लाइफ इज ए वॉर. अगर आपको उसमें जीतना है तो दूसरों के बारे में नहीं सोचना है. सो द पीपल हु बिकम सक्सेसफुल इन दैट लाइफ और हु बिकम मेगा सक्सेसफुल इन दैट लाइफ, दे डोंट गिव वैल्यू टू अदर्स, दे गिव वैल्यू टू देयर ओन सक्सेस. और एक रीजन होता है, अगर 100 लोग हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में सिर्फ 2 ही जॉब वैकेंसीज देगा, देयर विल बी ओनली 2 जॉब वैकेंसीज फॉर 100 पीपल, लेकिन 100 पीपल आर इक्वली क्वालिफाइड, इक्वली एबल एंड इक्वल कैपेसिटी. लेकिन जो 100 लोग में सिर्फ 2 ही जॉब्स मिलेंगे, इफ देयर आर ओनली 2 जॉब वैकेंसीज, देन दीज 100 पीपल विल compete with each other and only 2 people will get selected and 98 people will become failure with the same ability, the same qualification, with the same skills. तो ये क्या होता है? अगर आप 2 आदमी या एक आदमी सक्सेस होने के लिए 98 आदमी को या 98 पीपल दे हैव टू बिकम फेल्यूर. दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ. तो अगर आप वो एक आदमी या 2 आदमी में है तो आप ये समझ में नहीं आएंगे आपको. यू मे नॉट अंडरस्टैंड इफ यू रिमेन इन दोज 1 or 2 पीपल, बट इफ यू आर अमंग दिस 98 पीपल, देन यू कैन रियली अंडरस्टैंड दैट योर फेल्यूर इज नॉट योर फेल्यूर, इट इज बिकॉज ऑफ देयर अदर सक्सेस. मतलब आपका फेल्यूर का रिस्पॉन्सिबल आप नहीं होते हैं, वो 2 आदमी या एक आदमी जो आपसे आपका जो जॉब छीन लिया है, वो आदमी रिस्पॉन्सिबल होता है. आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल for the failure of your birth, you are not responsible for the failure of the education system, you are not responsible for remaining as an unemployed. अगर आपको बेरोजगारी है, अगर आप poor है, आप गरीब है, आप अकेला responsible नहीं है. इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं. there are so many people in this world who wants you to remain unemployed, who wants you to remain poor so that they can become successful and they can become rich or they can improve their wealth more. और एक important phase of life होता है marriage. Not only in India, all over world the divorce rates are increasing. India में भी ऐसे ही चल रहा है. There is no peace in families, especially in the younger generation. And एक जब प्रॉब्लम आ जाता है मैरिज रिलेशनशिप में, तो husband tries to blame wife and wife tries to blame husband.
सब लोग यही बोलते हैं तुम्हारा एडजस्टमेंट्स ठीक नहीं है, यू डोंट गेट हाउ टू एडजस्ट विद अदर पर्सन, दैट इज द रीजन व्हाई योर मैरिज फेल्ड। आप जाके एक बार कोर्ट में देखिए, जब डिवोर्स होता है ना, दोनों के बीच में कितना झगड़ा होता है, हाउ दे फाइट विथ ईच अदर एंड हाउ दे ब्लेम ईच अदर। क्या आप खुद रेस्पॉन्सिबल है जब आपने ऐसा सिचुएशन फेस किया है? अगर आप ऐसा सिचुएशन अभी तक फेस नहीं किया है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे मैरिज has some kind of a sacred institution, in marriage people live happily, in marriage everything is arranged properly, people जब मैरिज का अंदर आ जाता है वो सब अच्छा बिहेव करना शुरू करता है। कहाँ है वो सब? इन रियलिटी मैरिज हैज बिकम अ बिजनेस, इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस गेम। आप किसी से मैरिज करते हैं इसलिए क्योंकि आपका जिंदगी अच्छा होता है। अगर आपका जिंदगी अच्छा नहीं होंगे आफ्टर मैरिज, देन यू वांट टू कम आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। क्या आप ये सोचते हैं कि आप ही खुद रिस्पॉन्सिबल हैं? आप हो सकते हैं, लेकिन हर बार हर केस में ऐसा नहीं हो सकता है। द पर्सन whom you have married can be also responsible for the failure of marriage in your life. आप अच्छा आदमी है, सही आदमी है, you are a very good person, but your partner is not good. If we take the gender wise, if you are a lady, your husband may be a drunkard, your husband may be a debaucher, your husband may be having so many weaknesses, and you try to adjust with your husband, but your husband is not ready to adjust with you. He wants to exploit you in each and every aspect of your life. तो आपको तो बाहर आना चाहिए ना। नहीं, आप ये सोचते हैं कि नहीं, पति परमेश्वर होते हैं, क्या बोलते हैं ना हिंदी में, पति परमेश्वर होते हैं, वट एवर इज गिवन बाई गॉड टू मी, आई हैव टू सफर एंड आई हैव टू स्ट्रगल एंड आई हैव टू लिव विद द सेम पर्सन। When two people start living together, there will be so many problems. Problems can be from your side or problems can be from other person's side. अगर आपका मैरिज फेल हो गया, it is not that you are only responsible for the marriage or failure of the marriage. There will be so many people who wants you to fail in the marriage. आप देख लीजिए, रियलिटी में बता रहा हूँ, जब आप किसी दूसरों के घर में जाएंगे शादी करके, आपका मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये लोग आपसे कैसे ट्रीट करते हैं, आपको कैसा ट्रीट करते हैं, हाउ डू दे ट्रीट, डू दे ट्रीट विथ यू प्रॉपरली? 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है। इट इज लाइक अ वार बिटवीन द डॉटर इन लॉ एंड द मदर इन लॉ। क्यों ऐसे होता है? यही जिंदगी है ना। इसके बाद भी अगर आप जिंदगी ऐसा ही जीना चाहते हैं, देन यू विल लिव लाइक ए स्कॉर्पियन अंडर स्लिपर। तो आपको तो बाहर आना है ना। ऐसे रो रो मर मर के जिंदगी जीना है तो क्या फायदा है? Now let us come to the next side of the situation or the case. If you are a man and if you married a woman who is not right choice to you, I don't want to use any other word with great respect to women. If you are a right person, but if you have married a wrong woman can be in any other way. कोई भी हो सकता है. That woman can be very greedy, or that woman have so many psychological problems, or the woman is corrupted, morally corrupted. When you get married to such kind of woman, she will ruin your life. अगर आप ऐसे सोचेंगे भगवान दिया है, इसके साथ ही जिंदगी मुझे जीना है, तो यू आर गोइंग टू miserably suffer in your life. जब आप उसको रिलेशनशिप को तोड़ते हैं, और when you break that relationship officially in a legal perspective or in legal way, then if anybody says that you are responsible for that, are you really responsible? No. Things have been completely changed. People have understood life in a different dimension. आप ऑर्थोडॉक्स वे में थिंक करने से ये आपको समझ में नहीं आएगा. If a marriage fails, it is not because of you, it can be because of the person who never tries to understand your emotions and your feelings, and that person has treated you just like an object in the life. तो आप समझिए, you are not always responsible for your failure. There may be so many people in this world who tries to fail you. अगर आप broader perspective में देखेंगे, if you fail as an individual in a country, the whole system of the country is responsible for your failure. मैं आखिरी में एक छोटा सा एग्जाम्पल देके ये वीडियो को खत्म करता हूँ. You try to understand what I said in this video. मुझे कोई आदमी ने बताया था बहुत पहले, यू आर ड्राइविंग योर कार, यू आर ए रेस्पॉन्सिबल ड्राइवर, आपका गाड़ी कंडीशन में है एंड यू आर नॉट ड्रंक, यू आर ए रेस्पॉन्सिबल ड्राइवर, यू आर ड्राइविंग इन अ परफेक्ट वे. जब आप गाड़ी चला रहा है, आगे से जो आदमी गाड़ी चला के आ रहा है ना, ही इज ए ड्रंकर्ड, ही हैज नो ड्राइविंग लाइसेंस, ही इज इररेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग. वो रैश ड्राइविंग करके आके आपको गाड़ी को टकरा दिया.
ओके, देन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंसिडेंट? क्या आप अभी सोचते हैं कि आप ही रेस्पॉन्सिबल है? क्या अभी सोचते हैं मैं गाड़ी चलाना सीख लिया इसलिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, अगर मैं पैदा हुआ हूं इसलिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं? तो आपको क्या बताने से क्या फायदा है? यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल इन दैट इंसिडेंट, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अपोजिट ड्राइवर। आप कितना भी सही चलाने से भी कुछ फायदा नहीं है जब तक आपका जो पर्सन है, अपोजिट पर्सन है, whoever इज ड्राइविंग अपोजिट यू, वो अगर ठीक से नहीं चलाएगा। जिंदगी भी ऐसा है, आप अकेला है, इस दुनिया में 7.7 बिलियन पीपल है। आप कितना सही जाने से भी अगर वो 7.7 बिलियन पीपल में कोई भी अगर ठीक से नहीं जिया तो आपका जिंदगी वो बर्बाद कर सकता है। सो व्हाट आई मीन टू से दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑलवेज फॉर योर फेल्यूर्स। आप खुद जिम्मेदार नहीं है आपका जिंदगी में सारा फेल्यूर्स के लिए। देर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, देर आर सो मेनी एजेंसीज इन दिस वर्ल्ड। इफ आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, हमारा फैमिली में होता है वो लोग जो आपको चाहते हैं फेल होने के लिए। देर आर सो मेनी पीपल इन आवर फैमिली, देर आर सो मेनी पीपल इन आवर कम्युनिटी, देर आर सो मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी, there are so many systems and agencies in our community and in this world, governments, they all want you to fail because they want to survive। अगर आप ये सिचुएशन में भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सक्सीड होना है, तो आपको सिर्फ यही सोचना है, even though you have these many problems, you want to prove yourself to this world that you have the ability and capacity to play the game with the other people better than other people and to become successful in life। तो आपको समझ में आना है, जो आपको ऊपर षड्यंत्र बोलते हैं ना हिंदी में, जो लोग आपको ऊपर वो षड्यंत्र रचा के आपको फेल्यूर करना चाहते हैं ना, आप उन लोगों से भी तेज सोचना है। यू शुड थिंक बेटर देन देम एंड यू शुड डिफीट दोज पीपल। मैं इस वीडियो में सच बता दिया हूं, अगर आपको ये सच अच्छा नहीं लगा तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस truth which is not palatable to your ears and your heart and your brain, then I can't help you. You should reprogram your brain, otherwise you will live life in the same way। So thanks for watching this video, and if you are not yet subscribed to my channel, no problem, I am not asking you to subscribe to my channel if you don't really like my videos on my channel. It is up to you, but if you like this video, then please do subscribe to my channel, because you are going to receive so many updates and so much of information in future। So thanks for watching this video, and always remember, stay safe and stay strong. Take care.